بھر میں عید الاضحیٰ آج مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جائے گی۔ چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات ہوں گے۔ لاکھوں مسلمان سنت ابراہیمی ادا کریں گے۔ 24 نیوز کی جانب سے عید کی خوشیاں مبارک۔ قربانی کا جذبہ ایک عالمگیر حیثیت کا حامل ہے۔ کوئی بھی قوم ایثار و قربانی کے جذبے کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا عید الاضحیٰ پر پیغام۔ عید الاضحیٰ پر پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ افواج پاکستان کی طرف سے پاکستانیوں کو عید مبارک۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ اللہ پاکستان کو امن اور ترقی عطا کرے۔ مویشی منڈیوں میں رونق میلہ۔ عروج پر اونٹ، بکرے اور بیل کی خریداری کے لیے منڈیوں میں رش۔ کراچی میں جانور کم ہونے پر بیوپاریوں نے ریٹ کئی گنا بڑھا دیے۔ خریدار مارے مارے پھرنے لگے۔ یہ دوستی ہم نہیں بھولیں گے۔ گلی گلی محلے محلے آئے جانوروں کی خاطر مدارت۔ بچے مہمان جانوروں کو سجانے سنوارنے اور گھمانے میں مصروف۔ مہمانوں سے جدا ہونے کی فکر ابھی سے ستانے لگی۔ قربانی کا جانور خرید لیا، اب چاقو چھریاں تیز کروانے کی باری۔ ٹوکوں کی دھاڑ لگانے کے لیے دکانوں پر رش۔ موسمی کسائی بھی باہر نکل آئے۔ مرد حضرات منڈیوں میں ہیں تو خواتین بناؤ سنگھار کے لیے بیوٹی پارلرز پہنچ گئیں۔ رش کی وجہ سے خواتین کا گھنٹوں انتظار۔ بازاروں میں بھی خواتین اور بچوں کی عید شاپنگ جاری۔ عید پر ٹکے کھائیں، چانپے چاہے سیخ بوٹیاں، لیکن احتیاط سے، کیونکہ ذرا سی لاپرواہی آپ کو اسپتال پہنچا سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ میرے بہت سے مسلمان دوست عید الاضحیٰ منائیں گے۔ مجھے آج اسلام آباد کی مویشی منڈی میں آ کر اور بہت سے لوگوں کو قربانی کے جانور لیتے ہوئے دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ اسی طرح برطانیہ، پاکستان اور پوری دنیا میں مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ آپ سب کو میری اور برطانوی ہائی کمیشن کی ٹیم کی طرف سے دلی عید مبارک۔ عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک۔ برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈریو کا اردو زبان میں محبت بھرا پیغام۔ امریکی وزیر خارجہ اور کینیڈین وزیر اعظم کا مسلمانوں کو مبارکباد کا پیغام۔ Assalamu alaikum. Hello everyone. Today, Muslims in Canada and around the world will celebrate Eid al-Adha and mark the end of the Hajj. Eid al-Adha is a time to reflect on lessons of sacrifice and show compassion to those in need. Communities will come together to share food, pray, and give thanks for life's blessings. وزیر اطلاعات فواد چودھری عید منانے کے لیے اپنوں میں پہنچے تو حامیوں نے شاندار استقبال کے بعد ڈالرز کا ہار پہنا دیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اپوزیشن کا مشترکہ صدارتی امیدوار لانے کا فیصلہ۔ 25 اگست کو مری میں آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی گئی۔ اے پی سی کی میزبانی شہباز شریف کریں گے۔ مسئلہ کشمیر کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ کہتے ہیں امن کے بغیر دونوں ممالک خوشحال نہیں ہو سکتے۔ تنازعات کا حل زندگیوں میں بہتری لانے کا آسان نسخہ ہے۔ دو طرفہ تجارت کی بھی پیشکش۔ شکریہ سدھو۔ وزیر اعظم نے سابق بھارتی کرکٹر کو امن کا سفیر قرار دے دیا۔ سدھو کی مخالفت کرنے والے امن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ عمران خان کا حلف برداری تقریب میں شرکت پر سدھو کا شکریہ۔ بھارت میں سدھو کو ملک دشمن ثابت کرنے کی مہم جاری۔ پاکستانی آرمی چیف سے گلے ملنے پر سدھو کے خلاف غداری کا مقدمہ۔ سدھو بھی ڈٹ گئے، کہا ماضی میں بھی امن کی کوششیں کی گئی۔ واجپئی نے لاہور تک دوستی بس چلائی۔ نریندر مودی نے حلف برداری تقریب میں نواز شریف کو دعوت دی۔ مودی نے بھی اچانک لاہور کا دورہ کیا تھا۔
وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ کا ایکشن، نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا نام ای سی ایل میں شامل، شریف فیملی کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست نیب نے کی۔ ٹی ٹی وی پر سیاسی سینسرشپ ختم، ادارتی آزادی کی ہدایات جاری، اب محکمہ اطلاعات میں واضح تبدیلیاں نظر آئیں گی، فواد چودھری کا ٹویٹ۔ بڑی عید پر بادل بھی برسنے کو تیار، عید کے تینوں دن مختلف شہروں میں بارش ہوگی، محکمہ موسمیات نے خوشی کی خبر دے دی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں رقبہ عرفان ملک اور میں ہوں ذیشان بشیر۔ سب سے پہلے بات کریں گے چٹپٹی عید کی۔ تو ملک بھر میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جائے گی، پہلے نماز عید ہوگی، پھر قربانی اور گوشت کی تقسیم ہوگی۔ فرزندان اسلام اپنے رب کی رضا کے لیے سنت ابراہیمی کے سبھی تقاضے نبھائیں گے، جبکہ بچوں کو بھی ساتھی کے بچھڑنے پر دکھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ملک بھر میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ دن کا آغاز عیدگاہوں میں عید قرباں کی نماز کی ادائیگی سے ہوگا، جس کے بعد اہل ایمان سب گلے شکوے اور شکایتیں بھلا کر ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید ملیں گے۔ نماز عید اور خصوصی دعاؤں کے بعد اللہ کی خوشنودی کے لیے ملک بھر میں جانوروں کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد عزیزوں، رشتہ داروں اور مستحقین میں گوشت کی تقسیم تو ہوگی، ساتھ ہی مزے مزے کی دعوتوں کے کئی دور بھی ہوں گے۔ دوسری جانب بچے اپنے من پسند ساتھی کے بچھڑنے پر اداس بھی نظر آئیں گے۔ اور صدر پاکستان ممنون حسین اور وزیر اعظم عمران خان نے عید پر قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر ممنون حسین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیوں سے ہمکنار کرے، پاکستان کو سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل سے نکالنے کے لیے سنت ابراہیمی سے رہنمائی لینا ہوگی، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کوئی بھی قوم اثار و قربانی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ اور ادھر افواج پاکستان کی جانب سے بھی ہم وطن پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، نیول چیف اور ایئر چیف نے بھی قوم کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ اللہ پاکستان کو امن اور ترقی عطا کرے۔ کراچی میں امریکی کونسل جنرل نے دلچسپ انداز میں پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ کونسل خانے کے عملے نے قومی زبان میں پاکستانیوں کو عید مبارک کہا۔ ہماری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ آپ سب کو عید قرباں مبارک۔ میرا نام جان ہے، میرے طرف سے سب پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو بہت بہت عید مبارک۔ عید مبارک پاکستان۔ آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک۔ اہل پاکستان کو عید الاضحیٰ مبارک۔ تمام اہلیان وطن کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ Assalamu alaikum. I am Joanne Wagner, the United States Consul General in Karachi. On behalf of all of us at the consulate, American and Pakistani alike, it is my great pleasure to wish you and your family a very happy Eid ul-Azha. This is my first Eid in Pakistan, and I am honored to witness the tradition of sacrifice and piety that is so central to this special time. It is my great hope that this Eid brings joy, peace, and comfort to your homes and to your families here in Pakistan, in the United States, and around the world. To all, Eid Mubarak. Shukriya. اور پاکستان میں متعین برطانوی ہائی کمشنر تھامس جو نے اسلام آباد میں مویشی منڈی کا دورہ کیا اور وہاں بکروں کے درمیان کھڑے ہو کر اردو زبان میں عید کا پیغام ریکارڈ کرایا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے تمام پاکستانیوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ السلام علیکم،
अगले चंद दिनों में मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त ईद उल अज़हा मनाएंगे। मुझे आज इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में आकर और बहुत से लोगों को कुर्बानी के जानवर लेते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह बरतानिया, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मुसलमान ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे। आप सबको मेरी और बरतानवी हाई कमीशन की टीम की तरफ से दिली ईद मुबारक। तो अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। एक तरफ मर्द हजरात जानवर खरीदने में मसरूफ हैं तो दूसरी जानिब बाजारों में मनपसंद शॉपिंग के लिए खवातीन का रश लग गया है। और तो और बनाव सिंगार और दिलकश डिजाइन की मेहंदी लगवाने के लिए ब्यूटी पार्लर्स भी खवातीन से भर गए हैं। ईद छोटी हो या बड़ी और या हो कोई भी त्योहार, खवातीन अपनी शॉपिंग और सजने संवरने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। ईद उल अजहा पर जहां मर्द हजरात और बच्चों को कुर्बानी के जानवरों की फिक्र है, वहीं खवातीन के लिए ईद की खुशियां मेहंदी के बगैर अधूरी हैं। में मेहंदी के दिलकश डिजाइन बनवाने की ख्वाहिश खवातीन को पार्लर्स तक खींच लाई। मेहंदी लगवा कर ये जल्द अज जल्द घर जाना चाहती हैं, क्योंकि इन्हें कल मजे मजे के पकवानों के लिए मसालों की तैयारी भी तो करनी है। लेकिन पार्लर्स में रश की वजह से घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ईद की शॉपिंग के लिए तो जैसे बाजारों में खवातीन का सैलाब उमड़ आया। कहीं मनपसंद जूते और कपड़े पसंद किए जा रहे हैं तो कहीं मैचिंग चूड़ियां और हाथ दुपट्टा भी तो रंगवाना है। बड़ी ईद के मौके पर खवातीन की मसरूफियात आम दिनों की निस्बत ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन मसरूफियात के बावजूद खवातीन बनाव सिंगार और तैयारी नहीं भूलती, क्योंकि शॉपिंग और मेहंदी के बगैर ईद का मजा फीका सा लगता है। तो बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी खवातीन अब तक बाजारों में मौजूद हैं। कैसी गहमा गहमी है, मानिया शकील की रिपोर्ट में जानते हैं। खवातीन को ना है बकरे और गाय की परेशानी, उनको तो बस करनी है अपनी तैयारी। ईद गुरबा से कबल खवातीन ने कराची के बाजारों की रौनक बहाल कर दी। खवातीन का कहना है मर्द हज़रात तो मंडी में ही मसरूफ हैं, पर हमें अपने सजने संवरने की भी तैयारी करनी है। शॉपिंग तो हुई नहीं है हमारी अभी कुछ भी, सारे बकरे और गाय में ही लगे हुए घर के आदमी। हम लोगों ने काव ले लिए, एक और बकरे भी ले लिए हैं, तो अब हम लोग ईद की शॉपिंग में लगे हुए। चाहे बाजारों में कितना भी रश हो, खवातीन अपने साथ साथ घर वालों की तैयारियों को कैसे भूल जाएं। बस बच्चों की चली रही है, बच्चों के लिए ही लेने निकले में, अब बाकी देखें क्या मिलता है। बच्चे तो गाय बकरों में ही बहुत मसरूफ हैं। सारा साल तो कपड़े बनते हैं, लेकिन ये है कि ईद के ऊपर तो थोड़ा सा जरा चेंज होना चाहिए ना, नया कुछ पहना हुआ हो। जब बात हो चांद रात की तो मेहंदी के बिना तो है ईद अधूरी। खवातीन अपने मलबूसात के साथ साथ सजने संवरने की मैचिंग लवाजमात खरीदने में मसरूफ हैं। बकरे और गाय लाने की तो है मर्दों की जिम्मेदारी, पर खवातीन को तो करनी है अपने सजने संवरने की तैयारी। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। खवातीन की तैयारियों के हवाले से तो आपने जाना। रुख करेंगे गुजरावाला का। गुजरावाला में मवेशी मंडी से कुर्बानी के लिए लाया गया बैल ऐसा बिफरा कि इसने सबको आगे लगा लिया। तैमूर मिलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तैमूर, आगाह कीजिएगा, क्या मनाजिर देखने में आए? ये लाया बैल था जो बिफर गया, और इसने ऐसा बिफरा कि इसने जो है गुजरती जो गाड़ियां हैं उनको भी टक्करें मारी, और जो लोग इसको संभालने के लिए पास जाते थे उन्हें भी टक्करें मारता था। और मुश्किल जो है शहरियों ने इसे जो है वो खंबे के साथ बांधा, और फिर जो है वो गुज्जर और कसाई हजरात बुलाए गए जिन्होंने स्पेशल इसकी टांगे इसकी गर्दन के साथ बांधी और मुश्किल इसको लेके गए। और इस दौरान जो है पुलिस को भी बुलाना पड़ा, क्योंकि शहरियों का हासा रस जमा हो गया था और बैल को जो है वो सुधारने में काफी मसला पेश आ रहा था। पुलिस ने आके लोगों को साइड पे किया और फिर ये सारा मामला जो है इसके साथ किया गया। और इसको जो है बहुत शुक्रिया तैमूर आपका। ईद कुर्बान के लिए इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त मंडी में मौजूद है। मजीद सूरत हाल जानेंगे आफ्ताब वजीर से। आफ्ताब, आगाह कीजिएगा, आप इस वक्त मंडी में मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? अब कुर्बानी में चंद ही घंटे बाकी बचे हैं और यहाँ पर जो भी ख़रीदार आ रहे हैं वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से भाव बराबर हों और वो अपने साथ जानवर ले जा सकें, सुबह के वक्त सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सकें। यहाँ पर जानवर भी अब मंडी में कम तादाद में मौजूद रह गए हैं। इसके साथ साथ जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि हमने रेट भी उस हिसाब से बराबर कर दिए हैं और 2 दिन कबल जो रेट थे उससे काफ़ी बेहतर रेट अभी देखने में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो ख़रीदार हैं उनकी शिकायत यहाँ पर बरकरार है कि रेट तरह से नहीं है कि उनकी रेंज में आ सके। यहाँ पर कुछ अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो रेट्स का सिलसिला है कुछ बराबरी पर आया है।
نہیں جی، جو کل کا دن اور آج کا دن ہے اس میں ریٹ جو گزشتہ 3-4 دن تھے ان سے زیادہ بڑھ چکا ہے. منڈی میں جو جانوروں کی تعداد ہے وہ بھی کم ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جس علاقے میں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ زیادہ تر تنخواہ دار لوگ ہیں جن کی تنخواہ، اور وہ اس چیز کو تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں 15 سے 20 ہزار کی رینج میں جانور مل جائے. لیکن یہاں پہ بیپاری کھڑے ہیں، یہ چھوٹا سا جانور آپ دیکھ سکتے ہیں، چھوٹے جانور کو بھی 30 ہزار. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک بیوپاری بھی کھڑے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ جو شکایت ہے آپ لوگ جانور کوئی اچھے ریٹ میں نہیں دے رہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو پہلا 2 دن تھا وہ جو ریٹ صحیح چلتا تھا، جانور بھی تھا، ہم نے ریٹ بہت کم کر دیا. جو 30 والا جانور ہے 25 پر دے رہے تھے، آج ریٹ بہت ڈھیلا ہو گیا تھی، اتنا ڈھیلا ہو گیا جو میں بتا نہیں سکتا ہوتا. تو یہاں پر جو بیوپاری اور خریدار کے درمیان ایک بہت تاؤ کا سلسلہ جاری. وزیر آفتاب صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے. اور جہلم میں سونو مونو نامی بیلوں کی دھوم مچ گئی. مالک کو 35 سے 40 لاکھ روپے کی آفر ہو چکی، تاہم مالک خود ہی قربانی کرنا چاہتا ہے. راجہ وقار کی رپورٹ. سنت ابراہیمی کے لیے سونو اور مونو بازی لے گئے. سونو 45 من اور مونو 25 من وزن کے ساتھ جہلم بھر میں پہلے نمبر پر ہیں. ابھی تک جو کوئی راہ گزر نے بتایا نا، اس نے کہا کہ 35 لاکھ دے دیں. تو سونو اور مونو کی خدمت 2 سال سے کر رہے ہیں. دودھ اور مکھن کے علاوہ میوہ جات کھلائے جاتے ہیں. ہر روزانہ کا 2 کلو مکھن، تقریباً 60 کلو مکھن بنتا ہے ایک ماہ کا. 2 سال سے قربانی کے لیے ہوئے جانوروں کی خدمت کر رہے ہیں. 2-2.5 سال اس کو پالا ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، بیچنے کا تو کوئی نہیں اس کا. 2 سال سونو اور مونو کی خدمت کی. مارکیٹ میں 35 سے 40 لاکھ آفر آ رہی ہے، مگر قربانی کی نیت سے خدمت کی ہے. قربانی ہی کریں گے. جہلم سے راجہ وقار. سونو اور مونو نامی بیل تو آپ نے دیکھ لیے. بات کریں گے بوم بوم آفریدی کی، جو عید قربان کے جانوروں کے ساتھ خاصے مصروف ہے. مزید آپ اس فوٹیج میں دیکھیے. بکری لے لو، سوگا لگا ہوا آ جاؤ. روشن لے لو، لو سو لگا. کوئی اور من اس میں تو رسول اللہ دے گئی. احسان بچے آگے بڑھتے ہوئے گجرانوالہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. گجرانوالہ کی نہر اپر چناب میں کار گرنے کے واقعے میں نیا موڑ آ گیا. گارمنٹس شاپ کے مالک ہارون رشید کی کار حادثے کا سبب نہیں بلکہ بچوں سمیت خودکشی کی گئی. وائس میسج نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا. میرے بچے صبح دے شیپ لینا ہے، شیپ لے پاپا انہوں نے 4 لے لی، انہوں نے 3 لے لی، تو اب میں کہاں سے ان کو لا کے دوں؟ ان کی معصومیت مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ آخری وائس میسج ہے جس میں گورنمنٹ شاپ کا مالک ہارون رشید اپنی بے بسی بیان کر رہا ہے. 20 اگست کی شام ہارون گھر میں تو یہی کہہ کر نکلا کہ بچوں کے ساتھ قربانی کا جانور خریدنے جا رہا ہوں، مگر نہر اپر چناب پر پہنچ کر تینوں بچوں 10 سالہ زنین، 12 سالہ ایشل اور 3 سالہ حسنین سمیت گاڑی نہر میں پھینک دی. ریسکیو آپریشن کے بعد ہارون اور اس کے 2 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں اور تیسرے بچے کی تلاش ابھی جاری ہے. موصول ہونے والے میسیجز میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اس پر بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے. قرض کی وجہ سے وہ بھی ادا نہ کر سکا. وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی کہ ایسا قانون لایا جائے کہ بیٹیوں کا حق فوری ادا ہو سکے. پلیز عمران خان صاحب یہ جو ہے قانون نافذ کر دیں کہ جو بھی بچیاں ہیں، جو حقدار ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، کم از کم وہ اپنی بچیوں کو فارغ کریں. پولیس ہارون کے وائس میسج کے بعد خودکشی کا مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کر رہی ہے. کیمرامین متین بزمی اور آصف جان کے ساتھ شفقت عمران، 24 نیوز گجرانوالہ. ایک بار پھر سے بات کریں گے عید قربان کی تیاریوں کی، جو کہ زور و شور سے جاری ہیں. مرد حضرات قربانی کے جانور لینے میں مصروف ہیں تو وہیں خواتین لذیذ پکوان بنانے کے لیے مسالہ جات کی خریداری کر رہی ہیں. کراچی سے رپورٹ کریں گی مانیہ شکیل.
चटपटी ईद की चटपटी तैयारियां। ईद कुर्बान से कबल मसाला जात की खरीदारी के लिए खवातीन ने बाजार का रुख कर लिया। कलेजी, निहारी, पाए, पुलाव और टिक्का मसाला समेत सभी मसाले जात की मांग में इजाफा। खवातीन का कहना है वैसे तो पूरे साल ही मसाला जात की खरीदारी होती है, मगर ईद के लिए तो खास एहतमाम किया जाता है। हर उस घर में गोश्त, पाए, हर चीज मिलेगी आपको, तो जाहिर है यही मौका है तो इसी मौके पे लेंगे। हम लोगों ने अचार मसाला लिए है और बाकी पुलाव की तैयारी चल रही है, शामी कबाब वगैरह बनाएंगे। Yes, I every day come here buy some vegetable, beef and some fruit. दुकानदार कहते हैं ईद कुर्बान के मौके पर मसालों की कीमतें बिला मामूल कुछ बढ़ जाती हैं। इतनी खास नहीं बढ़ती है, कोई ऐसा खास इशू नहीं है, ये आगे से बढ़ के आती है रेट, जिसकी वजह से हम लोग को बढ़ाना पड़ता है। अगर हम रेट कम हो तो हम उसी रेट पे चलते पुराने। चटपटे जायकेदार पकवान के लिए बस अब ईद कुर्बान का है इंतजार, ताकि लजीज पकवान से सभी लुत्फानंदोज हो सकें। चटपटी मसालेदार खबरें हुई पुरानी, अब तो मौसम है चटपटे पकवान का, तो आए और ले जाएं। कैमरामैन शम्स सिद्दीकी के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। करेंगे मलेशिया में अगवा के बाद कत्ल होने वाले सियालकोट के नौजवान की मैयत आज पाकिस्तान पहुंचेगी। इस बारे में मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मियां अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मियां अशफाक, बताइएगा किस वक्त ये मैयत पाकिस्तान लाई जाएगी? आज मलेशिया के शहर कोलालमपुर में सियालकोट के नौजवान अली अदनान के अगवा के कत्ल के बाद उसकी डेड बॉडी जो है आज रात 3 बजे कोलालमपुर से 5 बजे सुबह 5 बजे कराची पहुंचेगी और उसके बाद सुबह 8 बजे से कराची से 9 बजे के करीब जो है वो सियालकोट पहुंचेगी। तो उसके बाद 11 बजे के करीब जो है वो मुतवक्को है कि ये डेड बॉडी लोहाकीन तक जो है वो सियालकोट में पहुंच जाएगी। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था। सियालकोट का रिहायशी अली अदनान है जिसे अगवा के बाद वो कोलालमपुर में जो है वो कत्ल किया गया था और उस कत्ल में अफसोसनाक सूरत हाल ये थी कि एम्बेसी की जानिब से किसी किस्म की कोई मदद फराहम नहीं की गई थी। तो अभी ये नौजवान की जो मैयत है सुबह 3 बजे कोलालमपुर से रवाना होगी और 5 बजे ठीक है। मियां अशफाक, बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। शेख रशीद ने नए पाकिस्तान में बूढ़ी खातून को माली इमदाद मांगने पर लाल हवेली में धक्के देकर निकाल दिया। 24 न्यूज़ के कैमरामैन आकिब जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, आगाह कीजिएगा, मामला क्या पेश आया लाल हवेली में? 24 न्यूज़ के नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर शेख रशीद की रिहाइशगाह के बाहर हम ईद की खुसूसी कवरेज करने के लिए पहुंचे तो वहाँ पे एक खातून उनसे मिलने के लिए बज़िद थी और वो काफ़ी देर से उनसे मिलने के लिए बज़िद थी, लेकिन हवेली का अमला उनसे मिलने नहीं दे रहा था। और जब मैंने देखा वो खातून फिर एकदम रोने लग गई, तो मैं जब उनके पास गया अचानक शेख रशीद साहब हवेली से बाहर आए। तो वो जब बाहर आए तो मैंने उनकी फुटेज बनाना चाहिए, कैमरा मेरे पास नहीं था, मैंने फ़ोन से उनकी फुटेज बनाने की कोशिश की। मैं उनकी फुटेज बना रहा था तो वो आए तो उन्होंने खातून के साथ लाउडली बात की और फिर जो है वो खातून उनसे मज़ीद बात करना चाह रही थी, लेकिन वो उनसे मतलब जान छुड़ा रहे थे। तो शेख रशीद साहब ने उन्हें धक्का दिया और गुजरे। जैसे वो बाहर आए, आगे मैं खड़ा हुआ था तो उन्होंने मेरे हाथ में फ़ोन देखा तो मुझे कहा आप मेरी फुटेज बना रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं फुटेज नहीं बना रहा। उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन खींचा, तोड़ा और नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए। आखिर ये खातून कौन थी और क्यों मिलना चाह रही थी शेख रशीद साहब को? इस बारे में कोई बात हो पाई आपकी उन खातून से? जी इस बारे में मेरी कोई बात उनसे नहीं हुई, लेकिन ज़ईफ खातून थी और बज़िद थी कि वो शेख रशीद साहब से मिलेंगे। हवेली का जो गार्ड थे उन्होंने उनसे मिलने नहीं दिया और जब शेख रशीद साहब उनसे मिले तो उन्होंने उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं किया। अच्छा, वहाँ पर मौके पर जो लोग मौजूद थे, क्या उनसे आपने किसी से ये जानने की कोशिश की है कि ये खातून आया कि इसी इलाके की रहने वाली थी या कहीं और से आई थी जो शेख रशीद से मिलना चाह रही थी? जी नहीं सर, मैंने किसी से कुछ नहीं
मालूम किया ठीक है, तो ये खातून जो है वो मिलना चाह रही थी उनसे, शेख रशीद साहब से, लेकिन शेख रशीद साहब ने इनसे मिलने से इनकार किया, और ना सिर्फ मिलने से इनकार किया बल्कि फुटेज बनाने पर 24 न्यूज़ के कैमरामैन आकिब जावेद का फ़ोन भी तोड़ दिया। बहुत शुक्रिया आकिब, इस बारे में तफसीलात से आगाह। बात करेंगे सदारती इलेक्शन की। मुल्क में 4 सितंबर को होने वाले सदारती इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ और मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पीटीआई के नामजद सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी ने अपनी इंतखाबी मुहिम कराची से शुरू कर दी है, जबकि दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें भी मुत्तफिका उम्मीदवार लाने के लिए मुशावरत कर रही हैं। नून लीग ने 25 अगस्त को मरी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुला ली है। पार्लिमानी इलेक्शन के बाद अब अगला मरहला है मुल्क में सदारती इलेक्शन का, जिसका शेड्यूल आ गया है और मार्का होगा 4 सितंबर को। पीटीआई के नामजद उम्मीदवार आरिफ अलवी ने कराची से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है और उन्होंने सबसे पहले MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद का रुख किया, जहां दोनों जमातों ने आइंदा का लाहे अमल तय किया। मुलाकात के बाद जहां कराची के मसाइल के लिए साथ चलने की बातें हुई, वहीं सदारती इलेक्शन में आरिफ अलवी की हिमायत की यकीन दहानी भी करा दी गई। आवाम हमारी तरफ देख रही है एक नए पाकिस्तान के एतबार से कि किस अंदाज से रिलीफ होगा, 100 डेज में क्या डायरेक्शन सेटअप किए जाएंगे। दिमाग से ज्यादा दिल ये कहता है कि दिन तब्दील होने हैं। कराची एक ऐसा शहर है जो उसको वसाइल मिलते हैं, तो ये वसाइल पलट के पाकिस्तान को इजाफी तौर पे मिलते हैं, पाकिस्तान की तरक्की का बाइस बनते हैं। आरिफ अलवी की सरबराही में वफ्द, उसके बाद जमात इस्लामी की हिमायत हासिल करने के लिए इदारा नूर हक भी गया। जमात इस्लामी कराची के सदर हाफिज नईमुर रहमान ने पार्टी में मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करने का कह दिया। हमारी ख्वाहिश भी आप कह सकते हैं कि ये होगी कि डॉक्टर साहब जो है मुंतखब हों। इंशाअल्लाह ताला इसको अपनी पार्टी में डिस्कस भी करेंगे, मरकज़ में भी बात करेंगे और इंशाअल्लाह कोई अच्छी सूरत निकलकर सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ अपोजिशन का सदारती उम्मीदवार कौन होगा, इस पर मुशावरत जारी है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह और रजा रब्बानी ने शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की और मुत्तफिका उम्मीदवार लाने पर बातचीत की। मुल्क के अंदर तमाम जमहूरी कुव्वतें आने वाले इंतखाबी मरहले में जो सदर के चुनाव के लिए है, मुश्तरका तौर पे उम्मीदवार लेकर आए। पीपल्स पार्टी ने सदर के ओहदे के लिए एतजाज एहसन को नामजद किया है, जबकि जराए के मुताबिक नून लीग अब्दुल कादिर बलोच को उम्मीदवार बनाना चाहती है। दोनों जमातों ने मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया है। और MQM के बाद PTI में भी दरारें पड़ने लगी हैं। इन्हें 252 से मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर कराची की क़यादत से नाराज हो गए हैं। हसन अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अब्बास, आगाह कीजिएगा, इस नाराजगी की वजह क्या है? बिल्कुल MQM के बाद जो हम देख रहे हैं कि PTI में भी जो है वो दरारें पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें कराची की क़यादत के हवाले से, तो 9 मुंतखब अरकान जो है सूबाई और कौमी असम्बली के PTI के वो शदीद नाराज दिखाई देते हैं। खासतौर पे जो सदर है कराची डिवीजन के फिरदौस शमीम नकवी के एक तरफा जो है वो एक ही मखसूस लॉबी बनाई हुई है जो हर जगह वक्त की सूरत में भी जा रहा है और दीगर चीजों में भी आगे आगे दिखाई दे रहा है। बाकी जब हमारी मुख्तलिफ PTI के जराए से बात हुई तो मुख्तलिफ नुमाइंदों का ये कहना है कि हमें जो है वो आगे नहीं रखा जाता, ना हमसे जो है वो मशावरत की जाती है किसी भी किस्म की। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो 24 न्यूज़ को जो है वो MA 252 से जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार जीते थे आफ्ताब जहांगीर साहब, उनका ऑडियो क्लिप जो है वो मौसूल हुआ है और उसमें जो है वो साफ वो ये कह रहे हैं अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कि चाहे MQM के साथ वक्त से जाना मुलाकात हो या जमात इस्लामी से वक्त की मुलाकात हो, मखसूस लोग जो है बड़ी से बात करते हैं और हमें जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने जो है वो खास तौर पे शिकवा जाहिर किया है और उनका ये भी कहना था कि हम जो MNA MP हैं, उन्होंने ये बात करी कि हम भी जो है वो MNA है, हमें भी जो है वो पूछा जाए। यानी कि एक बड़ी तशवीश की बात है PTI की क़यादत के लिए कि एक जानिब जो है वो कहते हैं कि हमने कराची को फतह कर लिया और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो अरकान है सूबाई और कौमी असम्बली के 9 मुंतखब, उनको जो है वो आगे नहीं रखा जा रहा। अब PTI जो है वो कराची की सबसे बड़ी जमात है। MQM जो है वो पहले दावा करती थी कराची की सबसे बड़ी जमात होने का। ठीक, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास आपका।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत KP की काबीना के हवाले से मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के नामों पर मुशावरत की गई है। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी मुलाकात की है। इसी बारे में इस्लामाबाद से बिलाल विर की रिपोर्ट देखते हैं। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में KP काबीना की तश्कील पर मुशावरत की गई। कौन सा रुकन वजीर बनने का अहल है। इमरान खान और वजीर आला ने 28 अरकान के इंटरव्यू भी किए। इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और आतिफ खान समेत दीगर ने शिरकत की। जराये के मुताबिक सूबाई काबीना में आतिफ खान, शाहराम ताराकई, तैमूर सलीम झगड़ा शामिल होंगे। रुकने सूबाई असम्बली तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। फैसलों पे काफ़ी गौर जो है वो हो रहा है, लेकिन फैसले क्या होते हैं या क्या नहीं होते और कितने हद तक होते हैं और नहीं होते, वो तो इंटरनल बात है और उनकी अनाउंसमेंट जो है वो CM साहब और खान साहब। रुकने सूबाई असम्बली इफ्तिखार अली मशवानी ने बताया अभी तक किसी भी रुकन को नामजद नहीं किया गया। इमरान खान जिसे भी नामजद करेंगे हमें कबूल होगा। जिसको भी वो नॉमिनेट करेगा, फाइनल करेगा, जो भी अनाउंसमेंट जिस टाइम करेगा इंशाल्लाह उसको हमारी जब देख होगी। नहीं, अभी किसी बंदे को फाइनल नहीं किया हुआ है। मेरे ख्याल में 1-2 दिन में करेगा, या तो आज करेगा या मेरे ख्याल में ईद के बाद करेगा। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब की मुलाकात हुई। वजीर आजम ने सरदार उस्मान बुज़दार को वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इमरान खान का कहना था कि उस्मान बुज़दार का इंतखाब पंजाब में एक नए दौर का आगाज है। उम्मीद है उस्मान बुज़दार इस एतमाद पर पूरा उतरेंगे। कैमरामैन इमरान नसीम के साथ बिलाल विर, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद गवर्नर सिंध पर होने वाले मुकदमे के हवाले से CPO मुल्तान लाइन निकले। जी हाँ, बिल्कुल बताएं कि नामजद गवर्नर इमरान इस्माइल पर 40 लाख रुपए के चेक के मामले के हवाले से दर्ज मुकदमा है और इस पर इमरान इस्माइल को अदमे पता करार दिए जाने के हवाले से CPO मुल्तान को कोई इल्म नहीं था। उनका कहना है कि ये 10 साल पुराना मुकदमा है जिसका इल्म उन्हें अभी हुआ है और वो इस हवाले से जांच पड़ताल करने के बाद मुकदमे के हवाले से कुछ कह सकेंगे। इमरान इस्माइल पर 2010 में मुल्तान के थाना मुमताज़ाबाद में मकामी ताजिर जमील अख्तर ने चेक डिसऑनर होने पर मुकदमे का इंदराज करवाया था। और वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह सेवन पहुंच गए, जहां उन्होंने दरगाह हजरत लाल शहबाज कलतुल्लाह पर हाजिरी दी। मज़ार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाने के बाद फातह ख्वानी भी की। मनाजर में भी आप देख सकते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी दी। उसके बाद फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। सिंध काबीना में तौसी का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध की काबीना में मजीद 10 वज़रा और 3 मुशीर शामिल करने का फैसला किया गया है। काबीना में कौन कौन से वज़रा शामिल होने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं। बड़ा मकसद, बड़ी टीम। सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने 8 रुकनी काबीना में तौसी का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक मुराद अली शाह अपनी टीम में मजीद 10 वज़रा और 3 मशीर शामिल करेंगे, जबकि एक मावन खुसूसी भी शामिल किया जाएगा। जराये का कहना है कि सैयद मुराद अली शाह की काबीना के इजाफी अरकान 27 अगस्त को हलफ लेंगे। नए मेंबरान की शमूलियत के बाद वज़रा की कुल तादाद 18 जबकि मशीरों की तादाद 5 हो जाएगी। दूसरे मरहले में काबीना में शामिल होने वालों में थरपारकर से राना हमेर सिंह, ठट्ठा से हुसैन शाह शिराजी, जाम शोरो से जाम खान शोरो, सखर से नासिर हुसैन शाह और जैकबाबाद से ताल्लुक रखने वाले मुमताज जाखरानी के नाम शामिल हैं। मुतवक्का वज़रा में मीर नादिर अली खान मक्सी और मुकेश कुमार चावला भी शामिल हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला के मुतवक्का मशीरों में ज़ियाउल हसन लंजार, उवैस कादिर शाह, अरबाब लुत्फुल्लाह, कासिम सिराज सोमरो, सैयद जुल्फकार शाह, निदा खोड़ो हो सकते हैं। काबीना में मौजूद अरकान से इजाफी कलमदान वापस लेने का भी फैसला किया है।